fine. So we have seen the relationship between the pressure and volume of the gas. We have seen the relationship between the volume and temperature of the gas. Today we are going to see the relation between the pressure and temperature of the gas. ठीक है, ये कब देखा था? जब अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है. ये कब देखा था? जब प्रेशर कांस्टेंट है. और ये कब देखेंगे? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है. Simple as that. Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes, Right? sir. What is absolute zero temperature? Zero Kelvin. Zero Kelvin. Zero Kelvin. Zero Kelvin is absolute zero temperature. Zero Kelvin in degree Celsius is how much? Minus Minus 273.15. Minus 273.15 degrees Celsius. Is this temperature attainable? Is this a realistic No. temperature? No. No. What happens at zero Kelvin? What is something which happens at zero Kelvin? Volume becomes Volume zero. is zero. Volume becomes zero, which is not Excellent, possible. excellent. Is volume becoming zero possible? No. Very perfect. ठीक. No. ये क्या है बेटा? Heel. हील? आइसक्रीम? Mountain. Mountains? Very good. What is this? Lake. Yeah. What is this? Beach. हाँ, एक नंबर. This is a beach. मेरा डायग्राम कितना प्यारा बनाया बेटा मैंने. देखो. This is Yes, a yes. sculpture of M.A. Hussain beta. I have participated in the world's best artist and I won the golden award for it. So this is a beach and this is a hill station or huge mountains. Okay, mountains would be the right word. Mountains. दोनों के बीच का डिफरेंस पता है आप लोग को? नहीं पता No, बेटा? sir. बीच और माउंटेन्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता आप लोग को? आप लोग कोई बात नहीं कर रहे. Hello, तो मुझे sir. बहुत बुरा लगता है. हाँ बेटा Hello. बोलो. बीच जो हाँ, होता है बोलो. वो सपाट होता है, पूरा सपाट होता है, और हिल होता है बीच इज सपाट. वेरी गुड. एंड हिल इज रिजन, हाई रिजन, ऊंचा. है ना? यस सर. हाँ. वेरी गुड. ठीक है. अभी कुछ लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, पता है आपको? ऐसा रस्सी बांध के इसके ऊपर चढ़ते हैं. वो लोग के पीछे कुछ तो रहता है. क्या रहता है पता है? हिल स्टेशन. अरे ये कमर के पीछे कुछ तो रहता है. क्या रहता है वो? Oxygen gas. Harness. ऑक्सीजन. Oxygen gas. हार्नेस बिजनेस तो ठीक है, बट ऑक्सीजन मास्क लगता है वो लोग को. क्यों? बिकॉज यहाँ पे गैस का प्रेशर लो है. गैस का प्रेशर लो है ना? Yes, sir. सर. ए बेटा ये क्या है पता है? ये Mountain peak. स्नो. 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 अगर स्नो है मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, Yes. pressure भी low है at high altitudes and temperature is also low. Let us go to the beach. When you go to the beach beta, you wear only shorts, है ना? And you wear a hat also. And you this is coconut बेटा, नारियल पानी. ठीक है. और ये वो ऐसा शेड वगैरह रहता है वो. क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता हाई है. होता है, हाई होता है. ठीक है. और गैस का प्रेशर कैसा रहता है?
वो भी हाई रहता है। लो। अभी तो वेव्स मूव हो रहा है ना अपनी तरफ, इतना जोर से प्रेशर आ रहा है गैस का कि वो वेव्स को अपने शोर पे लेके आ रहा है। ए बीच गए हो कभी तुम लोग, कल्याण से बाहर निकले हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बीच है बहुत सारे, अपने घर के पास में बहुत सारी बीचेस हैं। Yes, sir. कभी देखा है सैंड पे खड़े रहते हैं, पानी आता है अपना पैर से गिर जाते हैं लोग, कभी अपना फोटो खिंचाते हैं ऐसे खींच करके, पीछे से इतना जोर से पानी आता है पूरा बर्बाद हो जाता है फोटो। वीडियोस तो Yes, देखा जाए, sir. कॉमेडी वीडियोस। Yes, sir. हाँ sir. Talking about proper beaches, I'm not talking about Vittalwadi ka nala, beta. That's a different concept altogether. Okay, beta. So, why did I draw this? Why do I want to tell you all this? Because it is easier to understand the third gas law, which is Gay-Lussac's law. Which is Gay-Lussac's law. What does Gay-Lussac's law say? Gay-Lussac's law says that the pressure of a gas is directly proportional to the temperature of the gas. प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम किया तो टेम्परेचर भी कम होगा। सिंपल लॉजिक। Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, Now, sir. I couldn't find a very good example than this. इससे बेटर कोई एग्जांपल मुझे सूझा नहीं कि मैं आपको गैस का प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बता सकूं। हाइट्स पे प्रेशर भी लो है, टेम्परेचर भी लो है, एंड बीच के ऊपर प्रेशर भी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है। This gives you the relation between pressure and temperature. Is everybody clear or you are having any doubts? No, sir. No doubt. Everything is Okay, clear. beta. So this pressure will be equal to constant into T. Proportionality sign निकाला तो ऐसा आएगा, right? Yes, sir. Sir. So P by T is going to become constant. That Yes. means P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. This is going to be the final Gay-Lussac's law, guys. Yes, sir. क्या बोलते हो भाई लोग? Yeah, I was getting a call. Today is a working Saturday, not for me, but I still get calls. That's a sad life. Yeah, did you understand Gay-Lussac's law, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very happy. यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, अलग अलग वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐसा ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा बेटा मुझे, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? Yes, sir. हाँ. बट यहाँ पे देखो ये बीच में से शुरू होता है, कहां से शुरू नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? देखो ऐसा हवा में शुरू हो रहा है ग्राफ, ऐसा जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, क्यों? टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता। टेम्परेचर जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? प्रेशर जीरो नहीं हो सकता. क्या बोल रहे हो बेटा? वॉल्यूम जीरो नहीं होता। वॉल्यूम कभी जीरो नहीं होगा ना बेटा, राइट? तो अब इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा तो ये यहाँ पे मिलेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जीरो हो सकते हैं, पर दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, बिकॉज अगर दोनों एक साथ जीरो होंगे तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्रेशर अगर जीरो हो गया और टेम्परेचर भी अगर जीरो हो गया तो यू आर अंडरस्टैंडिंग वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम व्हिच डज नॉट हैव एनी एयर। Yes, sir. प्रेशर कभी जीरो हो सकता है क्या? गैस का प्रेशर, No, sir. गैस का प्रेशर अगर जीरो है मतलब गैस है ही नहीं, है ना बेटा? गैस का Yes, अगर sir. वॉल्यूम जीरो है तो मतलब गैस है ही नहीं। टेम्परेचर जीरो हो सकता है, टेम्परेचर का कोई वांधा नहीं है। नहीं? हाँ, Okay. अच्छा, so please write down this, don't draw this, just write down this and draw the graph, guys. Done? सर अभी तो लिखना हुआ है, रुको ना सर. अच्छा, तुम में से किसी को 90 प्लस मिला है क्या रे? अच्छा, किसी को नहीं मिला है, कोई बात नहीं। यस बेटा, डन? Yes, sir. सर ब्लर हो गया सर. कोई बात नहीं बेटा, रुक जाओ, मैं सिर्फ बोर्ड रब कर रहा हूं अभी। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है।
because it's raining since morning. Is it okay now? Clear दिख रहा है बेटा अभी? नहीं सर। बेटा, हाँ, थोड़ा ना थोड़ा तो बोलो। नो सर Clear दिख रहा है P1 कि अपॉन नहीं दिख रहा है? T1 के इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? K P by T is equal to constant K. नहीं सर, उसके नीचे सर। P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. ओके सर। Okay, sir. अभी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I erase this? Yes, sir. मैंने आपको दो बॉक्सेस सामने बना के दिखाए हैं. There are two boxes in front of you. Which box do you think will have a bigger volume? B. B. B B. box. बी B. अच्छा. So आप इसमें से कौन से बॉक्स में ज्यादा मॉलिक्यूल्स डाल सकते हो in the gaseous state? सर B। B. 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 Obviously B. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देख के पता चल रहा है कि नहीं डायग्राम? यस सर। Yes, sir. ठीक है. So can I say volume is directly proportional to the number of moles of a gas? The volume of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas? Yes, sir. नहीं बोल सकता मैं ऐसा? Yes, sir. कह सकता हूँ बेटा? खुला खुला दिख रहा है? Yes, sir. Number of moles बोलूं या number of molecules बोलूं, it is one and the same thing. Because if I have number of moles, I can find out the number of molecules n into Avogadro's number. Is this clear with everyone? Everybody knows what is Avogadro's number? Yes, sir. Acha. Yes, Very sir. good, beta. Very good. So, since V is directly proportional to N, V will be equal to K into N. What is K, beta? Constant. So, Constant. V upon N is equal to K. What is K? Constant. So, can I say this? V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. Can I say this? Yes, sir. ये बता किसका लॉ है? एवोगाड्रोस लॉ. आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा. यार ये लोग फालतू में कॉल क्यों करते हैं यार? छुट्टी के दिन तो कॉल मत करो मुझे यार. There should be a legal thing, you know, in throughout the country that when you have a holiday, लोगों का फोन ही नहीं लगना चाहिए, ऑफिस वालों का. Useless people. ठीक है. Have you written this, बेटा? Yes, sir. Yes. तुम लोग आज थोड़े उदास लग रहे हो. ऐसा क्यों बेटा? I said ना बेटा, it's absolutely fine whatever marks you have got. तुम लोग सब लोग को बहुत कम मार्क्स मिले हैं क्या? 50-40% ऐसा कुछ मिला है क्या? तो मुझे तो मार्क्स ही नहीं मिला. तुम्हें मार्क्स ही नहीं मिला बेटा. इतना तुमको अच्छा पास किया वो लोग ने. वाओ, दैट इज सो. अरे सर सीबीएसई है सर. सीबीएसई का आएगा रिजल्ट, कोई बात नहीं. एसएससी वालों तुम लोग इतने उदास क्यों हो? नहीं सर, उदास नहीं हूँ। नहीं हो ना? कितना मिला बेटा तुमको? गर्व से बताओ. 71। Dude, that is such an awesome score यार. Why are you Yes, so sir. sad? You should be happy, man. नहीं सर, सैड नहीं हुआ, हैप्पी हूँ मैं। हाँ, see that I really love your confidence बेटा. तुम Sir, we are happy. We are happy. Then why Yes, are sir. you not talking to me? I feel so sad. पुष्कर नहीं, संस्कार. अथर्व, Yes, तुम sir. हो लेक्चर में? यस हाँ सर. भाई, कितने आए अथर्व? अरे सर मैं बोला ना मेरा कितना हुआ? सीबीएसई है. मेरा सीबीएसई है सर. अरे तेरा सीबीएसई है, तुम अलग से बॉम्ब फोड़ोगे. संस्कार तुम्हारा क्या है? 92. हो, बताया क्यों नहीं जब मैंने पूछा था किसी को 90 प्लस मिला क्या? मुझे भी 90 प्लस.
किसको 90 मिला और सर मुझे मिहिर 95 मीर को भी 90 मिला। बाप रे, तुम लोग को तो मैं पढ़ाने के योग्य नहीं हूँ फिर। सर 90 ने अनुष्का को- 95 अनुश्री को भी मिला। बाप रे, 92, 95 एंड ऑल। वाओ। तो आई थिंक आई शुड नॉट टीच यू गाइस। प्रकृत को भी मिला। दिस इज इंटरेस्टिंग। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू शुड बी हैप्पी राइट? तुम लोग को तो फटाफट आंसर देना चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे हो आंसर? Yes, sir. बिना exam 93. Oh, very proud, very proud. Nice. So I think I am not eligible to teach you then. I should not teach you. तुम लोग को मुझसे ज्यादा मार्क्स मिले। Am I अरे right? सर, No, sir. नो सर, आपको सिखाना चाहिए सर। हमें तो बिना एग्जाम के मार्क्स मिलने वाले हैं। आपने एग्जाम अरे हाँ बेटा, बट मेहनत तो की थी तुमने 9th में और 10th में। Doesn't matter. Don't think about it. Okay बच्चे? So as I'm saying, the marks are going to vary. ठीक है? It's our efforts that count. Okay? So be happy with whatever you got, and trust me, you got very good marks. I love the confidence of the guy who said 71. किसी 90 वाले ने तो confidently नहीं बोला जितना उसने बोला। I'm very proud of you. बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चला। ये लिख लिया? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा जो यस सर बोला अभी? ओमकार है नायर। सर, ओमकार। ओमकार। ओमकार नाम क्यों नहीं बता रहे हो अपना मुझे? हॅलो, हाँ ओमकार, अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो तुम मुझे? बोललो ना सर, पहिल्यांदा बोललो मी, नाव बोललो आणि मग मार्क्स सांगितले माझे। माझं नाव काय तुला माहित आहे का? हाँ सर, विजय सर है आपका नाम। अरे मेरा नाम सिर्फ विजय है, विजय सर नहीं है। ये लिख लिया? कैन आई रब दिस? Yes, Yes, sir. ओके। ये ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगना रहेगा तो माफ कर दो। एक तो ये नीचे जा रहा है ना? तो ठीक है यार, तुम लोग को दिख रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। दिस माइट बी अ लिटिल स्लाइंटिंग बिकॉज मैं यहां से निकाल रहा हूं तो मुझे स्ट्रेट दिखेगा ना। ये क्या है? oxygen. ये क्या है? Nitrogen. ये क्या है? Hydrogen. ये क्या है? Carbon dioxide. वेरी गुड। ठीक है? इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है। T। ओके। इसका भी प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है। मींस सबका टेम्परेचर T है, सबका प्रेशर P है। इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है। सबका वॉल्यूम भी सेम है। सब गैसेस का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, volume same. Okay, so when Avogadro's law also says like this: when different gases are at same temperature, pressure and volume conditions, then the number of molecules in those gases is same, is equal. अलग अलग गैस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब चारों अलग अलग किस्म की गैस है। सबका वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो इनका क्या सेम रहेगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इफ आई से आई हैव 1 mole of oxygen, I have 1 mole of nitrogen, I have 1 mole of helium and I have 1 mole of carbon dioxide at same temperature, pressure and volume. तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है नंबर मुझे? 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23. ये क्या है?
Avogadro's number. Avogadro's number सबको पता है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So this is what your Boyle's law, sorry, Avogadro's law is further stating. Guys, are you aware of this? ये लिख लिया? Can I rub this? Yes, sir. Okay. No, No? Okay. स्क्रीनशॉट ले लिया सर. स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, बट बाद में बुक में जरूर बाद लिख में लेना प्लीज. लिखता हूँ सर मैं, उसका प्रॉब्लम नहीं. पक्का? हाँ सर. हाँ सर. तो अथर्व, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुमसे नोट्स दिखाने के लिए बोलूंगा, ठीक है? ठीक है. अच्छा बेटा. टीचर्स कैसे बेकार होते हैं, जबरदस्ती लिखवाते हैं, जबरदस्ती पढ़ने को बोलते हैं. टीचर्स आर बैड. टीचर्स आर बैड बेटा. अगर कोई जवाब नहीं आया तो आई विल कंसीडर इट एज यस. No, sir. मैं जानता हूँ तुम लोग आधे मन से नो सर बोल रहे हो. टीचर्स बैड होते हैं. यार, I'm sweating like a pig. What is wrong? ठीक है, fine. Are you aware of this concept? ये क्या होता है बेटा, जब हम लोग मुंबई से दिल्ली में फोन करेंगे तो एसटीपी फोन करते हैं, राइट? नहीं? Yes, sir. No, sir. No, sir. वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग की जनरेशन को ये वर्ड्स पता है क्या? एसटीडी, पीसीओ. हाँ सर. हाँ सर. Sir, Yes, PCO sir. पता- सर मला ओके, कारण जब हम सुना है हम सर. लोग छोटे थे ना, तब ऐसे सब लोग के पास फोन्स नहीं हुआ करते, तो पब्लिक फोन्स हुआ करते थे. वो पब्लिक फोन्स का जमाना खत्म हो गया, लोग बाहर से फोन करते थे पब्लिक फोन से. तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फोन करे तो एसटीडी, और लोकल फोन करे तो पीसीओ. पर ये वो नहीं है. ये क्या है, इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? ओमकार, तो संस्कृत का बड़ा वाला है फुल फॉर्म. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड Standard temperature and pressure. लड़की जैसा लगा मुझे. सर मैंने बोला श्रद्धा पांडे. श्वेता ने बोला. ओके ओके श्रद्धा पांडे सर. हाँ, श्वेता पांडे, राइट? सर जो स्क्रीनशॉट निकालो मैंने लिख लिया सर, लिख के भी हो गया. अरे माय गॉड, यू आर अ सुपरमैन. तो श्वेता ने एकदम सही बोला. इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. श्वेता, आप बताओगे बेटा, व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? श्वेता, यस सर. आप बोलो ना बेटा, बोल क्यों नहीं रही हो? क्या पूछ रहे सर? इसकी वैल्यू क्या होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की? नहीं पता है. हो, नहीं पता? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर Yes, sir. एक फिक्स कंडीशन है जहाँ पे टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और प्रेशर हम लोग 1 बार 1 बार लेते हैं या फिर 1 atm लेते हैं. ये पता है सब लोग को? अभी सर बार पहली बार सुना है, अभी बार पता पहली चला. बार सुना है. मतलब अभी पता चला यूनिट्स ये होते हैं अलग अलग, ये pressure पता है आप लोग को? और ये तो मैंने बताया था. वो भाई पहली बार कैसे सुना है? मैंने बताया था ना, बार इज द यूनिट, देन Pascal is the unit, ATM is the unit, torr is the unit, mm of Hg is the unit. अथर्व, हाँ सर सॉरी भूल गया मैं कहाँ जाके मरूं बेटा? सर, कहीं नहीं, पक्का? भूल गया था सर, सॉरी, याद ऐसे कैसे रखूंगा. बोल सकते हो? तुमने बोला पहली बार सुना है. यहाँ कितनी बार गए रहेंगे पर सुना पहली बार सर है. भूल गया तो यही बोल रहे हैं, सॉरी सर. अरे कोई बात, सॉरी मत बोलो यार, कोई बात. ठीक है, मैं मस्ती करता हूँ तुमके साथ, ठीक है. 1 बार और 1 atm. अच्छा, STP for 1 mole of a gas. For 1 mole of a gas, what is the volume? फर्स्ट चैप्टर हो गया है. तुम लोग को 22.4. या तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर हो गया है ना? DM क्यूब. लीटर या फिर डीएम क्यूब इज 1 यूनिट ओनली, करेक्ट? यस सर. Yes, sir. मैं उसको लीटर बोलूं या डीएम क्यूब बोलूं, वो एक यूनिट है ना बेटा? हाँ सर. यस सर. अच्छा,
तो ये लिख लो, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर ये जब भी दिया जाएगा ना, the volume of the gas is so and so at STP, find the number of moles। Yes. तो STP दिया रहेगा तो टेम्परेचर ये लेने का, प्रेशर ये लेने का, ठीक है। मैंने रब कर देना है, ये रब कर दो बेटा। Yes, sir. डन भाई, सर। एक यस नो बोलने के लिए तुम लोग मेरा गला फड़वाते हो तुम। ओके ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल, ये हमने अभी देखा था बेटा। ये कौन सा लॉ है, कोई बता सकता है मेरे को? Avogadro. Avogadro's law. Very good, Avogadro's law। ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस सर। कैपिटल एम क्या है? मोलर मास। What do you mean by molar mass? Molar mass का मतलब क्या होता है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस तुमको पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर में सब पढ़ा चुके हैं हम लोग। सर मोलर मास मतलब उसका क्या बोलते मोलर हैं? मास मतलब एक मोल का मास कितना। एक मोल का मास। हाँ सर वही बोल रहा था। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने नहीं किया है क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। किया है सर। क्या है सर? Yes. ये है ना, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? पहली बार देख रहे हो। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m अपॉन कैपिटल M, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया बस। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब क्या करेंगे, मोलर मास को इधर लेके जाएंगे, कैपिटल M इधर आ जाएगा और V यहाँ आ जाएगा। ए बेटा, यस सर। M अपॉन V क्या होता है? Density. डेंसिटी होती है D। तो कैपिटल M क्या है? मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी, M अपॉन V इज डेंसिटी। What does this mean? Molar mass of a gas is directly proportional to the density of the gas. Yes, sir. Yes. Mass, density, mass, volume, these are all measurable properties of gases जो मैंने आपको in depth discuss कराया है। Guys, are you all in your senses today? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Or you have partied too high last night that you do not know what I'm talking about? तुम लोग ने पार्टी किया घर पे? सब लोग का जिसका अच्छा मार्क्स आया वो लोग का, सब लोग का Yes, sir. क्या नहीं किया sir. बेटा पार्टी में, बताओ? Cake cut किया. केक कट किया। मैंने भी मेरी नीस के लिए केक लेके गया, उसको 83% आया, तो मैं उसके लिए लेके गया था केक। रात को गया था लेक्चर के बाद, 9 बजे के बाद। तुमको पता है जब मेरे 10th में मार्क्स आए थे मेरे घर पे क्या बना था? क्या? भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी बेटा, भिंडी की सब्जी कितनी सुंदर होती है, वो बनाई थी। Dude, I love bhindi, okay? Do you love bhindi? If someone does Yes, not sir. love bhindi, he's सर not बचपन good. में Yes, sir. If you do not like bhindi, that means तुम्हारे घर में भिंडी बरोबर से बनती नहीं है, वरना भिंडी is a very beautiful vegetable. Forget about bhindi. Bhindi is not our point of discussion. Our point of discussion is molar mass and density, which is directly proportional, जो मैंने अभी प्रूव किया। क्या आपने ये लिखा? Yes, Yes, sir. Yes. अच्छा, हो गया सर लिख क्या बोल रहे बेटा? हो गया सर लिख के हो गया लिख के? अच्छा, Yes. ये समझा ना लेकिन? Yes, sir. श्रद्धा, श्रद्धा नाम की लड़की है क्लास में? Yes, sir. हाँ बेटा। Tell me what is Boyle's law, श्रद्धा? Yes, sir. No sir.
Yes sir. Yes, yes, yes. अरे बताओ मुझे क्या है बॉयल्स लॉ? P is inversely proportional to volume. Yes. प्रकृत प्रकृत Yes, sir. चार्ल्स लॉ बताओ मेरे को. Sir, I was not in the lecture. तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो बेटा? First floor. अरे रे रे कुछ होगा ही नहीं. कोई बात नहीं, विठलवाड़ी स्टेशन चलेंगे किसी दिन, ठीक है ना? हाँ संस्कार, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? संस्कू. Sorry, sir. Sorry sir, why? That is not Charles law. Sorry sir is not Charles law. You had gone on a date when I was teaching you Charles law. No, sir. Then why don't you know what is Charles law? अभी लास्ट लेक्चर में तो पढ़ाया था. और मैं बोलो नहीं, लास्ट लेक्चर में तो पढ़ाया था संस्कार एंड प्रकृत. तो तुम लोग क्यों नहीं आ रहे ये? एंड आई बिलीव तुम दोनों को 90+ मिला. आई एम नॉट टॉन्टिंग यू. अच्छा, वर यू एब्सेंट इन द लास्ट लेक्चर? VT चार्ल्स लॉचा VT ऐसा है सर. अल्फा VT. सर मैं बोलूं अल्फा VT. दिस इज नॉट हाउ यू से इट बेटा. हाँ बेटा अथर्व बोल बच्चे. सर इस सर चार्ल्स लॉ में सर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. Very good, beta. Very good. V alpha T means what? Volume is directly proportional to temperature. Arey guys, you're disappointing me. Your favorite law, Gay-Lussac's law. What is Gay? आज ही सिखाया, ये तो बता दो. आज ही सिखाया. That is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. ये 3 ठो लॉ पढ़े हमने. एक और लॉ पढ़ा हमने, कौन सा बेटा वो? Avogadro's law. Avogadro's law. Avogadro's law म्हणजे काय? Volume is directly proportional to the number of moles. Yes, sir. Yes, sir. मला एक सांगा, हे सगळ्यांना कळलंय का रे बोर्डवर जी मी लिहिलंय? हो, sir. लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट लेक्चर आणि आज लेक्चर, हे 3 लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला हे 4 लॉज शिकवलेत. तुम्हाला सगळ्यांना कळलं का हे लॉज काय म्हणतायत? हे आपल्याला काय देतायत? हे आपल्याला गॅसेसच्या मेजरेबल प्रॉपर्टीजच्या रिलेशन दाखवतायत. कोणत्या मेजरेबल प्रॉपर्टीजचा? प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ मोल्स. 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज. हे 4 प्रॉपर्टीज एका गॅसला प्रॉपरली डिफाईन करू शकतात. आपण काय बघितलं? आपण त्यांच्यामध्ये रिलेशन बघितलं. डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे की इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. पण कधी बघितलं? प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा कधी बघितलं? जेव्हा टेम्परेचर कॉन्स्टंट होता. ओके. व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचरचा कधी बघितलं? जेव्हा प्रेशर कॉन्स्टंट होता. आणि प्रेशर आणि टेम्परेचर कधी? जेव्हा व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट होता. हो की नाही? सर. येस बेटा. सर मी ओंकार मगाशी जे उत्तर बोललो ना, हो. ते माझ्याकडून चुकून बोललं गेलं, कारण ती मधलं साईन आहे ना माझ्या तोंडात, म्हणजे बोलता येत नव्हतं मला नीट ते काय बोलायचं. ओके. त्याला डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणतात बाळा. ओके. हा येस सर. हा सॉरी, Okay. पण ते बोलता येत नव्हतं नीट. नो नो नो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज. यू शुड आस्क मी बेटा, मेरे को पूछने का कभी भी बिंदास, ठीक है गाइस? तुम लोग को सब लोग को ये क्लियर हुआ है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's sir. law and Avogadro's law. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, Is sir. it possible for me? Is it possible for me to always keep temperature, pressure and volume constant while finding this relation? Always. एक certain period of time के लिए मैं कर सकता हूँ, पर हमेशा उसको constant रख सकता हूँ? थोड़ा बहुत तो नहीं. changes होगा ना? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने प्रेशर चेंज किया तो टेम्परेचर से थोड़ा तो फर्क पड़ेगा. अगर मैंने वॉल्यूम चेंज किया थोड़ा तो फर्क पड़ेगा. देखो, है ना? Yes, sir. राइट. तो ये जो सब दे रखा है ना बेटा, दिस इज ऑल आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस. अभी ये क्या है? ठीक है. अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ. अब वो एग्जांपल क्या है वो सुनो. एग्जांपल ये है कि हेलो, एम आई ऑडिबल? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, fine. यस सर. आज मस्त बारिश हो रहा है, ठीक है.
आज बारिश हो रहा है और क्लास से आपको मैसेज आया आज के सारे लेक्चर्स कैंसल्ड हैं, ठीक है। फिर आपकी मॉम ने आपको उठाया नहीं सुबह, आप आराम से 11 बजे उठे और जब आप उठे तो आपकी मॉम ने आपको ऐसा मस्त फ्लावर वाला चप्पल दिया पहनने के लिए, आपको प्यार से पुचकारा, बेड के अंदर ब्रेकफास्ट दिया आपको, राइट, कि भाई ये खा, ठीक है। उसके बाद आपको मस्त गर्म पानी से नहलाया, फिर बिठाया, फिर अच्छा अच्छा खाने को दिया, आपको टीवी देखने दिया, आपको गेम्स खेलने दिया, आपको मूवीज देखने दिया और पूरा दिन आपका अच्छे से गया। इमेजिन किया बेटा तुम लोग ने ये? Yes. बेटा ये जिंदगी में कभी हुआ है आज तक? नो सर। No, No, sir. No, sir. This is an Sir. ideal condition. What is the reality? Your mom will switch off the fan if you do not wake up. Okay? She will kick you out of the bed. Forget about giving breakfast in bed, right बेटा? और वो भी Yes. कभी उठने के बाद घर में झाड़ू पोछा करो, सब करो, उसके बाद खाने को मिलेगा वो भी 2 रोटी बस. Okay, I'm kidding, but I'm just telling you that is reality, right? So बेटा ऐसा ही gases का होता है, ideal gas and real gas. Ideally there is no force of interaction between gases, but reality में there is some small force of interaction, right? Yes, sir. Yes, sir. Ideally gases have infinite volume, but कहीं तो finite होता है, उसको मैं measure तो कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, right? Yes, sir. Yes, sir. Ideally the gases are highly compressible, but there is going to be a point. अभी एक गुब्बारे को आप ये करोगे तो अगर गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वो गुब्बारा बिना फटे हुए बंद होना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? फटाक करके आवाज आता है और जो घर में दादी माँ है उसको हार्ट अटैक के मर जाती है वो, राइट? Yes, sir. I'm trying to make you laugh and cheer up, okay? So did you understand these laws? These laws are actually obeyed only in ideal conditions, जो exist नहीं करते हैं. रियल गैस एक चीज होती है जो मैं चैप्टर में आगे पढ़ाने वाला हूं. आपको एक छोटा आइडिया आया कि देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस. दीज लॉज विल ओनली बी फॉलोड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर. Yes, sir. ठीक है अभी बेटा, ठीक है, ये एक चीज है. हाँ, आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल द लॉज. आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल द लॉज एंड राइट वन लॉ. ठीक है, तो प्रेशर कहां पे है? इस साइड पे है प्रेशर. वॉल्यूम कहां पे दिख रहा है? अगर इस वॉल्यूम को मैं यहां लेके तो सब वॉल्यूम यहां पे आ जाएगा, PV. ठीक है, PV इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यहां पे अगर देखूंगा टेम्परेचर ऊपर ही है, PV इज प्रोपोर्शनल टू NT. N ऊपर है, T ऊपर है, T ऊपर है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो PV आ जाएगा इस तरीके से. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P is directly proportional to T, V is directly proportional to N. मैंने सबको कंबाइन कर दिया. मैंने कुछ गलत किया बेटा? No, sir. बेटा मैं टीचर हूं, मैं गलत कर ही नहीं सकता, है ना? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. मैं गलती कर सकता हूँ, यहाँ गलती नहीं करी है बट मैं गलती कर सकता हूँ. ठीक है, ये तुमको समझा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. हे सगळ्यांना कळालंय का रे? Yes, sir. सांगा. PV is directly proportional to NT. हा प्रोपोर्शनॅलिटीचा साइन जे आहे, हे अल्फा जो ओमकार तू बोलत होता बाळा, हा अल्फा नाही, हा अल्फा ऍक्च्युअली अल्फा साइन आहे तो, पण आपल्याला इथे काय म्हणतात त्याला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हा साइन आपल्याला कळावा लागेल आणि इथे इज इक्वल टू टाकावा लागेल. तर मग इथे काय होणार बाळा? कॉन्स्टंट. Yes, sir. हा कॉन्स्टंट Yes, sir. आहे, याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून बघितली आहे आणि त्याची व्हॅल्यू असते R. त्याची व्हॅल्यू असते R. आपण ह्याला रिशेड्यूल, रिफ्रेश केलं तर असं होतं, PV इज इक्वल टू nRT. आणि PV इज इक्वल टू nRT इज कॉल्ड एज योर आयडियल गॅस इक्वेशन. Ideal gas equation. Ideally, all the gases should follow this. Pressure and volume का product should be equal to number of moles into R into T, where R is your universal gas constant. R is your universal gas constant. ये बेटा तुमको पता है
जैसे एवोगैड्रो नंबर का एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे ही आर का एक कांस्टेंट वैल्यू है अलग अलग यूनिट्स में। जो हम करेंगे अभी के लिए सिर्फ इतना रखो कि वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स ओवर हियर? अथर्व, संस्कार, प्रकृत, ओमकार, श्रद्धा, शिवानी, नो सर। मयूरी, नो सर. प्रकृत, राहुल, No, sir. अमित, अक्षय, आदित्य, अदीश, Sir, अभिन, repeat कीजिए हर्ष, ना। आर्या, सर रिपीट अथर्व, कीजिए ना। शिलेश, बिस्मी। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर रिपीट कीजिए ना। मैं रिपीट करूं बेटा? कहां से रिपीट करूं बेटा? PV is directly proportional to NT. PV is directly proportional to NT। ये मुझे कहाँ मिला? इन सबको कंबाइन करके मिला। इसको मैं सबको कंबाइन करूंगा तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। म्हणून B इथे आलाय, म्हणून B उधर गया है, राइट। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालने के लिए मुझे इज इक्वल टू डालना पड़ेगा, और जब मैं इज इक्वल टू डालूंगा तब मुझे कांस्टेंट भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। This constant is nothing but R. It is a pre-calculated value which is called as the universal gas constant, and PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए आएगा, जो आपको बहुत सारे एंट्रेंस के क्वेश्चंस में काम आने वाला है। PV is equal to nRT। क्लियर हुआ बेटा? Yes sir. लिख लिया सब लोग ने ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, यस सर। सभी लिखेंगे इसको। Any doubts? You are supposed to ask me right now. Can I erase the board, guys? Yes sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, हेलो सर। if I exclude the number of moles, if I Hello? exclude the number of moles out of this, अगर मैं एवोगैड्रोस लॉ को नहीं गिनता हूँ, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ को अगर मैं नहीं गिनता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? PV is directly proportional to T, right? कंबाइन किया मैंने सबको। PV is directly proportional to T, so PV upon T is equal to constant। अरे बेटा, PV is equal to constant into T, तो Yes, PV sir. upon हाँ. T is equal to constant। Yes or sir. no? तो इससे मुझे क्या मिलेगा? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 for the same gas. This is called as the combined gas law। इजी है ये भी? Yes, sir. Yes, sir. समझते हैं ना? तो बिंदास पूछने का, ऐसा रुकने का नहीं कि मतलब अरे यार कैसे पूछूं, इसको बुरा लग गया तो मेरा काम है। मैं लास्ट क्लास में तुम लोग को पीवी का एक सम दिया था क्या? इसका पीवी का चार्ल्स लॉ का सम दिया था मैंने लास्ट क्लास में, वीटी का। इट इज आइदर अ यस और अ नो। मैंने न्यूमेरिकल कराया था लास्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क दिया था, किया होमवर्क? व्हाट वाज द वॉल्यूम जो मैंने कराया था बेटा उसका? 1.5 into 10 raised to minus 4 dm cube. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। I want you to solve it. I don't know which formula you will use, but I want you to solve it. Can I erase the board, guys? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, मेरे को भी स्क्रीनशॉट करते हो क्या? फिर मेरे ऊपर मीम्स मत बनाना तुम। सर लिख क्या हो Transfer जाएगा? into gas was placed in a flexible 9.0 liter container given वॉल्यूम दिए ना बेटा, वॉल्यूम 9 लीटर वॉल्यूम दे रखी है बेटा। At temperature 300 Kelvin, temperature is 300 Kelvin, always remember temperature should be in Kelvin. Pressure is 1.5 atm, P1 is
1.5 ATM. ATM म्हणजे एनी टाइम मनी, Atmosphere. एटमॉस्फेयर. एटीएम गए हो बेटा कभी? गैस वाज कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम ऑफ, गैस को कंप्रेस किया, गैस का वॉल्यूम 3 लीटर कर दिया, ठीक है, गैस का वॉल्यूम 3 लीटर कर दिया और उसका एंड हीट वाज एडेड अंटिल टेंपरेचर रीच टू 600 केल्विन, टेंपरेचर कर दिया 600 केल्विन. ये पूछ रहा है इसका न्यू प्रेशर कंटेनर में क्या होगा. यू हैव टू फाइंड P2. You have to find P2. I want to know, Aditya, what is the formula I'm going to use for this numerical? ये numerical के लिए मैं कौन सा formula use करेगा P1 आदित्य? upon P1 V1 upon T1 Very good बेटा. V1 T1 Last time upon जो P1 is नहीं equal बेटा. to P2 V2 upon T2. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Very good Aditya. आताच कराया है. 1.5 into V1 क्या है 9 upon T1 क्या है 300 is equal to P2 ढूंढने का है अपने को into V2 अपने पास है 3 and T2 is कितना है T2 600. ठीक है, तो बहुत इजी समझ बेटा. ये P2 क्या हो जाएगा? P2 will be 1.5 into 9 into 600 upon 300 into 3. ये 0 0 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा. ये क्या हो जाएगा 1.5 into 6. 1.5 into 6 कितना हो जाएगा बेटा? प्रेशर कितना आएगा एटीएम में? 9 ATM. सबको मिला ये? Yes, sir. इजी है ना बेटा? डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. Yes, sir. अगर 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा कुछ? नो सर. No, sir. एकदम इजी था. आए इजी था. Hold on. I'm looking for new numericals for you. अभी नया कॉन्सेप्ट शुरू नहीं करता हूँ 10 मिनट में. I'll give you one numerical to solve जो आप लोग करोगे. सर आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आई सर. अच्छा अच्छा. Yeah. Can I rub the board? Yes, सर sir. लिख लोगे सर? अच्छा बेटा मुबारक हो. हाँ जी, अब आएगा क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, आवाज आ रही है अभी बरोबर से? Yes, sir. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन. स्क्रीन ब्लर क्या बोल रहे हो बेटा? स्क्रीन ब्लर हो रही है. अभी ठीक है? यस सर. Yes, sir. The volume of a given mass of gas at 0 degrees Celsius is 2 decimeter cube. Volume of a gas is 2 dm cube. Temperature क्या है बेटा? 0 degree Celsius. Calculate the new volume of the gas at constant pressure when the temperature is increased by 10 degrees Celsius. When the temperature is increased by 10 degrees Celsius, तो इसमें 10 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 degrees Celsius. ठीक है? You have to find the new volume. You have to find the new volume. हर्ष, इसमें अपने को कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? बोनी बोनी बोनी, are you there बेटा? हाँ सर. हाँ बेटा बोनी, आप मेरे को बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? V1 upon T1. वेरी गुड. सर आपकी आवाज अटक रही है और स्क्रीन भी. सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है क्या?
V2 equals upon to T2 upon V. Now tell me one thing, beta. T1 0 degree Celsius दिया है. If I divide by 0 degree Celsius, this is the non-defined term. तो इसको solve कैसे करूंगा मैं? हाँ, अथर्व कैसे solve करूंगा इसको मैं? सर अभी क्या बोलते हैं V1 उसको मैं लिख दूंगा यहाँ T2 पे is equal wrong to data given, wrong sum, give me full marks, है ना? सर केल्विन में अरे कन्वर्ट जीरो से करेंगे डिवाइड नहीं कर But सकते ऐसा ना बेटा, question बचपन आएगा में ही सीखा क्यों? था ना. क्या बोल रहे हो? सर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसका आंसर नॉट डिफाइंड है. तो बताओ फिर इसमें क्या करना होगा? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. क्या? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. रिमेम्बर मैंने स्टार्टिंग में बोला था सारे सम्स में केल्विन यूज करना है. दिस इज 0 प्लस 273 केल्विन, तो इट इज गोइंग टू बी 273 केल्विन. बेटा इसमें क्या हो जाएगा? 10 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 283. 283. 0.15 ऐड मत करो, सिर्फ 273 करो, ठीक है? सॉल्यूट ऑन. अब देखो V1 कितना है 2, T1 कितना है 273 इज इक्वल टू V2 कितना है ढूंढने का है, T2 कितना है 283. तो अपना V2 क्या हो जाएगा बेटा? 2 into 283 upon 273. Am I right? Yes, sir. चलो सॉल्व करो और मुझे V2 बताओ कितना आएगा. DN क्यूब में ही आना चाहिए. लॉग सिखा दिया तुम लोग को, लॉग टेबल? हाँ या तो ना, दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है बेटा. सर मुझे लॉग डेसिमल में टेबल सिखाया, यूज करने को लॉग टेबल सिखाया. भाई हाँ ना भी ना बोल रहे बालक. Yes, sir. You all know how to use log, तो use log. अगर log यूज नहीं करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है तो वो करो, बट गिव मी द फाइनल आंसर. Waiting. सर 2.073 DM cube. 2.073 DM good. cube. 2.073 DM क्यूब. दूसरों को आया ये वैल्यू? यस सर मेरे आई. Yes, sir. बेटा सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोगों को? ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ना बच्चे, यस सर. है ना? यस Yes, सर. sir. अभी अब ये एक सम हो गया, ठीक है? ये आंसर आपका करेक्ट आया. सेम सम है, ठीक है? सेम सम है जिसके अंदर द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस. अगर ऐसे होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? -10 तो degree. हाँ, T2 क्या हो जाएगा? सेम सम है, T2 में टेम्परेचर डिक्रीज किया तो -10, तो -10 प्लस 273. अब क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 263 केल्विन. This is your homework to find V2 when the temperature is decreased by 10 degrees Celsius. मुझे ये बताओ V2 बढ़ेगा कि कम होगा? कम आएगा क्यों? सर क्योंकि -10 है. क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज किया है और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क करोगे? Yes, sir. ठीक नहीं करोगे? No, sir. मिल गया Very सर good. आंसर. चलो पार्टी करो तुम लोग. Congratulations once again to all of you. थैंक यू सर. होमवर्क लिख लो बेटा, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो पानी.